Hi guys, welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. मैं हूँ मानसी and today we will be discussing about voting क्योंकि voting season is going on everywhere, voting is happening. तो आज डिस्कस करते हैं that what kind of right is voting. I know कि lot of law students have this confusion कि voting is a constitutional right या फिर statutory right है या fundamental right है. तो what it is. So share it with all your friends who are pursuing law, who are law students, or who even those who have completed law, because voting is something which is a very general thing, but still, in spite of being law students, many people don't know what kind of right it is. So this is going to be a very informative video when it comes to voting right. Please like the video, subscribe to the channel if you are new over here, and share it with your friends. Right. So before moving to the final answer of this question, let's see first that what is a fundamental right, or what is a constitutional right, or what is a statutory right. Right. So fundamental right क्या होता है? Fundamental rights very clear. Fundamental rights are those rights which are provided in the part 3 of the constitution. ठीक है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 से लेके आपके आर्टिकल 32 तक जितनी भी राइट्स प्रोवाइडेड हैं वो सब आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं, करेक्ट। फिर आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के अलावा जितनी भी राइट्स हैं, जैसे कि आपकी राइट टू प्रॉपर्टी विच इज आर्टिकल 300A, ठीक है, इस तरीके की जितनी भी राइट्स हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। अब व्हाट आर स्टैट्यूटरी राइट्स? तो जो राइट्स आपको स्पेसिफिक स्टैट्यूट से मिल रही हैं, या फिर जो राइट्स आपको स्पेसिफिकली किसी लेजिस्लेशन के थ्रू मिल रही हैं, जैसे राइट टू रिकवर रेंट जो आपको रेंट कंट्रोल एक्ट्स के थ्रू मिलता है, इस तरीके की राइट्स क्या है? ये आपकी स्टैट्यूटरी राइट्स होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वोटिंग के मामले में क्या है। तो आर्टिकल 326 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है वो भी आपको एक राइट देता है व्हेन देयर इज एनी इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, उस सिचुएशन में हु कैन वोट एंड हु कैन नॉट वोट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 326. So it basically states that the elections to the House of People and to the Legislative Assembly of every state shall be on the basis of adult suffrage. That is to say, every person who is a citizen of India and who is not less than 18 years of age on such date as may be fixed in that behalf or under any law made by the appropriate legislature and is not otherwise disqualified under this constitution or any law made by the appropriate legislature on the ground of non-residence, unsoundness of mind, crime, or corrupt or illegal practice shall be entitled to be registered as a voter at any such election. So the article basically says that any person who is above 18 years of age and is a citizen of India and is not disqualified nahi hai, that is he has not done any illegal act, he has not done any crime, on the basis of residence wo kisi aur country ka citizen hai, to obviously he cannot vote on the basis of unsoundness of mind. So if a person is sound, is a citizen of India, is of 18 years of age and has not committed any offense, then that person is entitled, it says that the person is entitled to be registered as a voter and to give vote. ठीक है, now another thing which is there in Constitution of India, तो 61st Constitutional Amendment Act 1988 से this adult suffrage was decreased from 21 years होती थी originally age, फिर इस एज को डिक्रीज करके 18 years कर दिया गया है। ठीक है, so now after reading this article, what is your opinion that if there is a person जो 18 साल से ऊपर का है, अगर इंडिया का सिटीजन है, साउंड माइंड का है और उसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करी है, वो प्रिजन में नहीं है, तो क्या वो वोट दे सकता है? यस, वो वोट दे सकता है, बट ये राइट उसको कहां से मिल रही है? तो ये राइट उसको आर्टिकल 326 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिल रही है। ठीक है, दिस इज वन स्टेप टूवर्ड्स आंसरिंग आवर क्वेश्चन। ठीक है, when we see article 326 it is clear कि यहां से राइट डिराइव हो रही है। ठीक है, बट अभी इसके बेसिस पे यू कैन नॉट से वेदर इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और नॉट। ठीक है, अब आते हैं हम अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस वाज अ रिट पिटिशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 33 ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट। ठीक है, उसमें इस रिट पिटिशन में बेसिकली ये चैलेंज किया गया था दैट हु कैन बी अ whether a person can contest election from 2 seats or not. ठीक है, बट इसमें
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने अपना एक ओपिनियन दिया था और उन्होंने कहा था, दिस वाज मियरली हिज ओपिनियन, इन्होंने राइट टू वोट के बारे में बात करते हुए कहा था कि इट इज नॉट अ रेस्ट्रिक्शन, राइट टू वोट इज नॉट अ रेस्ट्रिक्शन, इट इज अ फैसिलिटेटिव measure. Of course, there are some judgments that say that the right to vote is only a statutory right and not a constitutional right. But no, it is a constitutional right because it is a part of Article 19(1)(a), the right of expression, the right of people to elect and for people to vote. ठीक है? So there are a few judgments. I'll tell you the name of those judgments also. So there is Kuldeep Nair versus Union of India, which was a 2006 judgment, and the other judgment is रमाकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इन दोनों ही जजमेंट्स में ये बोला गया है कि राइट टू वोट जो है आपकी एक स्टैट्यूटरी राइट है. ठीक है? दिस वॉज अ 5 जज बेंच जजमेंट और ये भी एक लार्जर बेंच का ही जजमेंट था और दोनों का डिसीजन था कि राइट टू वोट एक स्टैट्यूटरी राइट है. ठीक है? बट आपके जो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने अश्विनी कुमार उपाध्याय वाले केस में ये ओपिनियन दिया, इनका जजमेंट नहीं था ये, इन्होंने ये ओपिनियन दिया कि भले ही कुछ जजमेंट्स ऐसा कहते हैं कि राइट टू वोट इज अ स्टैट्यूटरी राइट, बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, क्योंकि वो राइट जो है आर्टिकल 19(1)(a) से डिराइव हो रही है और स्पेसिफिकली आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डिराइव हो रही है. ठीक है? इसके बाद जो आपका अनूप बारनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट जो लास्ट ईयर आया, इसमें मेजॉरिटी ओपिनियन ये था कि आर्टिकल 326 से क्योंकि राइट टू वोट डिराइव होती है, इसलिए राइट टू वोट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. ठीक है? एंड इट डिपेंड्स कि इफ यू आर क्वालिफाइड और नॉट, मतलब अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, अगर आप साउंड माइंड के हो, अगर आप 18 ईयर्स से अबव हो, एंड इफ यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड एज पर आर्टिकल 326, देन इट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. दिस वॉज द मेजोरिटी ओपिनियन. बट फिर साथ में एक डाइसेंटिंग ओपिनियन भी आया जो कि जस्टिस रस्तोगी ने दिया. जस्टिस रस्तोगी ने अपने डाइसेंटिंग ओपिनियन में यहाँ पर ये बोला कि जो आपकी राइट टू वोट है ये एक फंडामेंटल राइट होनी चाहिए. ठीक है? तो इन्होंने कहा कि ये एक फंडामेंटल राइट होनी चाहिए. और इन्होंने ऐसा क्यों कहा? इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स को रेफर करा और इन्होंने वहां उसको रेफर करते हुए ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स का इंटेंशन ये था कि राइट टू वोट को एक फंडामेंटल राइट बनाया जाए. पर उस टाइम पे क्योंकि हमें प्रिंसली स्टेट्स को इंक्लूड करना था और प्रिंसली स्टेट्स इस ओपिनियन के फेवर में नहीं थी, सिर्फ इस वजह से राइट टू वोट को एक फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया था. ठीक? ये कहते हुए जस्टिस रस्तोगी ने यहाँ पर कहा कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19(1)(a) के हिसाब से हर इंसान के पास होता है एक फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड राइट टू वोटिंग इज also a part of your freedom to speech and expression because you are voting your opinion कि आपका opinion क्या है. Who do you want to be the elected member from your constituency? Who do you want to be your leader? So that is also your ओपिनियन. ऐसा कहते हुए जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि राइट टू वोट जो है वो एक फंडामेंटल राइट है. ठीक है? बट इस चीज पे ध्यान दीजिए कि ये दोनों ही जो हैं ये दोनों सिर्फ ओपिनियंस थे, ये जजमेंट नहीं है. दिस वाज नॉट द रेशियो ऑफ द केस, दिस वाज मियरली एन ऑर्बिटर डिक्टा. सिमिलरली जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने बोला वो भी एक ऑर्बिटर डिक्टा था, वो भी उनका सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन था. यहाँ पर अनूप बारनवाल में कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला कि हमारे सामने ये क्वेश्चन नहीं आया है, दिस इज नॉट द क्वेश्चन बिफोर अस दैट वेदर राइट टू व्हाट काइंड ऑफ राइट इज राइट टू वोट, एंड दैट इज व्हाई वी विल नॉट गिव आवर जजमेंट स्ट्रिक्टली अपॉन इट. ठीक है? साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जो आपके दूसरे जजमेंट्स थे, कुलदीप नायर वाला जजमेंट एंड रमाकांत पांडे वाला जजमेंट, यहाँ पर भी स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन रेज नहीं करा गया था कि राइट टू वोट किस तरीके की राइट है. ठीक है? यहाँ पर भी जो क्वेश्चंस थे वो कुछ एंसिलरी क्वेश्चंस थे, पर जजमेंट में जजेस ने ये बोल दिया कि राइट टू वोट जो है वो एक स्टैट्यूटरी राइट है. ठीक है? तो अब आपके पास
तीन ओपिनियंस हैं, तीन चीजें हैं आपके पास। पहले तो है आपके पास कुलदीप नारायण और रमाकांत पांडे वाले जजमेंट्स, जिनमें स्पेसिफिकली ये बोला गया है कि राइट टू वोट एक स्टैट्यूटरी राइट है जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के थ्रू सिटीजन्स को मिलती है, ठीक है। और ये जजमेंट्स जो हैं इनको स्पेसिफिकली अभी तक ओवर रूल नहीं करा गया है, ठीक। इसके बाद आया आपका अश्विनी पांडे वाला केस, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना ओपिनियन दिया, और उनका ओपिनियन भी एक ऑबिटर डिक्टा है, वो भी रेशियो डिसिडेंडी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। उनके ओपिनियन में उन्होंने बोला कि राइट टू वोट जो है भले ही जजमेंट्स में कुछ भी लिखा हो पर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। इसके बाद आया आपका अनूप बारनवाल वाला जजमेंट, जिसमें मेजॉरिटी ओपिनियन यही था कि राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और साथ में एक डाइसेंटिंग ओपिनियन हमें मिला जिसमें बोला गया कि राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट है। तो अब इन सब चीजों को सुनने के बाद आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि राइट टू वोट कौन सी राइट है, एंड टेल मी दैट in the comment section. By the time I will introduce you to my courses, and after that I will let you know the answer to this question. Right. So we provide you classes for law officer exams and for LLM entrance exams. If you want to enroll with us and if you want to study in detail all the subjects related to your exams, then you can visit www.toprankers.com. इधर online courses पर जाके you can explore online courses में जाके law PG plus banking पे जाके आप हमारे courses को explore कर सकते हैं. We provide live classes, we provide mentorships, we provide comprehensive study materials and a lot of mock tests for all of you, right? Coming back to the question that what is right to vote. Before that, please like the video, please share it, and please subscribe to the channel, right? So right to vote, if you ask me presently, it should be statutory right. ये एक statutory right ही होनी चाहिए, because till date your judgments of Kuldeep Yadav and Kuldeep Nair, sorry, Kuldeep Nair and Ramakant Pandey have not been expressly overruled by the court, right? But because Chief Justice of India has made a very strong statement recently, last year ही Supreme Court DY Chandrachud, Honorable DY Chandrachud ने 2023 में ही ये statement दिया है कि despite of the judgments उन्होंने बोला है कि judgments भले ही कुछ भी कहे, still constitutional right ही होगी right to vote, ठीक है। But we will still need to wait for a particular case, a particular writ petition. If a specific writ is made in the court, एक specific petition अगर court में करी जाती है challenging or asking to explain the court ki what actually is right to vote, then we will get the correct answer. But for now, let's go with the statement that Chief Justice of India D.Y. Chandrachud has said, because he has specifically said that notwithstanding the judgments, जो judgments हैं, जो कुलदीप नायर वाला judgment है और जो रमाकांत पांडे वाला judgment है, उनके despite भी डीवाई चंद्रचूड़ का ये ओपिनियन है और वो ये कहना चाहते हैं कि राइट टू वोट जो आपकी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट। So right to vote is a constitutional right which can be derived and which is derived from Article 326 of the Constitution of India, and you can read it with Article 19(1)(a) of the Constitution of India, right? This is what D.Y. Chandrachud also said, and I also think that it will be a constitutional right. If any specific plea is made or if any specific prayer is made in the court asking the court that what kind of right it is, then it will be a constitutional right only, right? All right, guys, this was it from my side today. All your opinions are welcomed in the comment section and I'll try to respond to whatever your opinion is, okay? This is it. Take care. Bye-bye and happy learning.